ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਮਸ ਲਾ। ਓਮਸ ਲਾ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਓਮਸ ਲਾ ਅਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਓਮਸ ਲਾ ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ +2 ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ बैटरी लगा दी। मान लो इस बैटरी की वोल्टेज कितनी आ, V वोल्टेज आ ते ये जिहड़ी बैटरी आ ना ये वेरीएबल बैटरी आ। वेरीएबल बैटरी का मतलब की आ कि ये उत्तों आपां 1 वोल्ट भी लै सकते हैं, थोड़ा जिहा बटन घुमावांगे 2 वोल्ट हो गया, थोड़ा जिहा होर घुमाया 3 वोल्ट हो गया। मतलब वक्खरियां वक्खरियां वोल्टेज की आए सानू प्रोवाइड करवा सकती आ। हुण देखो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਐਰੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ? A ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ A ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ? ਐਮੀਟਰ ਆ। ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ R। ਓਮਸ ਲਾ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਓਮਸ ਲਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੰਟ ਵੀ 0 ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੰਟ ਤੇ ਫਲੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਰੱਖੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ 1 ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 1 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 2 ਐਂਪੀਅਰ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਰ ਵਧਾਈ, ਕਰੰਟ ਦੇਖਿਆ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਓਮਸ ਲਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜੇ। मतलब भावें मैं कॉपर की तार वरतां भावें सिल्वर की तार वरतां, सारे की करते आ जदों उहदे विचों इलैक्ट्रॉन फ्लो होने आ, जदों उहदे विचों करंट फ्लो होना वा ते सारे दे सारे जिहड़े कंडक्टर वा वो की करते आ माड़ा मोटा अपोज करते आ करंट नूं। क्योंकि जे माड़ा मोटा अपोज करते हैं ना तो असी कई बारी देखते हैं कि तार गर्म हुंदी आ। तुसीं प्रैक्टिकली कई बारी ऑब्जर्व किया होएगा कि किसी सर्किट दे विच कोई तार लाई आ ते वो गर्म हो गई, जल्दी गर्म हो गई। जल्दी गर्म होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। उहदे विचों एक कारण ये भी हो सकता वा कि वो तार जिहड़ी आ वो करंट दे लंघण नूं अपोज कर रही आ, मतलब उहदे अगे एक ओपोजिशन खड़ी कर रही आ। ते मैं इहो गल कह रहा वां भावें जिद्दां दा मर्जी कंडक्टर लै लईए ना, कॉपर दा लै लईए, सिल्वर दा लै लईए, सारियां दे विच कुछ ना कुछ अपोज करन दी ताकत हुंदी आ। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟਰ नहीं हैगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕੀ ਆ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਰੋਕੇਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ बैटरी की वोल्टेज ਵਧਾਉਣ ਦਾ मतलब की आ कि इलैक्ट्रॉन की एनर्जी ਵਧਾ रहे जो। जिमें जिमें असी इलैक्ट्रॉन की एनर्जी ਵਧਾ रहे हाँ तिवें तिवें सानू सर्किट दे विच ज़्यादा करंट नज़र आउंदा वा। हुण देखो ये किवें, मैं इत्थे समझाउणा तुहानूं कि मान लो यह कोई रस्ता वा ते इस रस्ते दे विचों इलैक्ट्रॉन्स ने निकलना वा ते इलैक्ट्रॉन्स नूं पिछों की मिल रहा वा, पिछों एनर्जी मिल रही आ। एनर्जी कित्थों मिल रही आ, बैटरी तो। उहदा एनर्जी प्रोवाइडर कौन आ, बैटरी। हुण मान लो एक बैटरी आ जिहदी 20 वोल्टेज आ, इन्हें की करना वा, जिहड़ी तार इहदे नाल लगी आ ना उहदे विचले इलैक्ट्रॉन्स नूं एनर्जी देनी आ। ते मैं की कीता कि पहलां इस वोल्टेज नूं 1 वोल्ट कीता। हुण यह एक रस्ता वा, इन्ना यह की आ, एक रस्ता वा, वे आ, पाथ आ, ठीक आ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 1 ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ज़्यादा एनर्जी वाला ज़्यादा निकलेगा, छेती ना निकलेगा तो असी कहांगे कि करंट भी ज़्यादा बनेगा। गल तो यही होगी ना कि जे तुसी इस सर्किट दे विच ज़्यादा वोल्टेज वाले इलैक्ट्रॉन भेजोगे तो की होएगा, ज़्यादा इलैक्ट्रॉन जिहड़े ज़्यादा वोल्टेज वाले इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ सर्किट दे विचों निकल जाणगे ते घट वाले की आ हो सकदा घट वाले जिहड़े आ वो ना निकल पाउण। हुण देखो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि वोल्टेज ਵਧਾਈ ਤੇ करंट ਵਧਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਇਸ R ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ R ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਓਬਸਟੈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। पर इत्थे रजिस्टेंस किहदे वास्ते आ, मतलब इत्थे ओपोजिशन किहदे वास्ते आ, ते इत्थे ओपोजिशन सिर्फ किहदे वास्ते आ, इलैक्ट्रिक करंट वास्ते। ते यही गल मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा वां, भावें कोई भी कंडक्टर होवे, किसी भी तरह का कंडक्टर होवे, सारियां दे विच रजिस्टेंस मौजूद हुंदी आ। किसी दे विच ज़्यादा हुंदी आ, किसी दे विच घट हुंदी आ। ईवन कि तुसीं जिहड़ियां घर दे विच कॉपर दीयां तारां वरतदे जो, उन्हां दे विच भी कुछ ना कुछ रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो मौजूद हुंदी आ।
ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, मतलब जे आर वड्डी होएगी, मैथमेटिकल इक्वेशन सानू की कह रही है, जे आर वड्डी हुई तो फिर आई ने की हो जाना वा, आई ने छोटी हो जाना वा, कि वी ने कांस्टेंट रहना वा। हुण सानू ये पता लग गया इत्थों कि जे लो रजिस्टेंस होएगी तो करंट हाई होएगा, क्योंकि वोल्टेज के पिछों सप्लाई हो रही है। सो साडे कोलों ये रिलेशन बन गया रजिस्टेंस का। मतलब ओवरऑल रजिस्टेंस की है, रजिस्टेंस एक करंट वास्ते रुकावट आ। जदों किसी तार दे विचों इलैक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो हरेक तार उन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं रोकण की कोशिश करती है, तो वो जिहड़ी रोकण की कोशिश करती है जां ओपोजिशन आ, उहनूं असीं की कह रहे हैं, उहनूं ही असीं रजिस्टेंस कह रहे हैं। सो ये साडी रजिस्टेंस आ, जिहनूं आर दे नाम दे नाल असीं संबोधित करांगे। तो इस दे विच साडे कोलों दो चार चीज़ां होर नोट करन वालियां वा। हुण देखो जदों आपां इधरों वोल्टेज वधा रहे हैं तो इधरों वी ते आई दी, वी ते ए दी रीडिंग नोट कर रहे हैं, मतलब एम्पीयर मीटर दी रीडिंग जिहड़ी आ नोट कर रहे हैं, उदों साडे कोलों जिहड़ियां बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशनस आ वो की आ कॉन्स्टेंट होणियां चाहीदियां वा। मतलब कि बाहर वालियां साडियां एक्सटर्नल कंडीशनस जिहड़ियां जिवें टैंपरेचर हो गया वो नहीं वधना चाहिदा, वो उन्ना ही होना चाहिदा वा, तो जिहड़ा तुसी कंडक्टर लै रहे जो वो भी उन्ना ही होना चाहिए। मतलब ये बाहर वालियां एक्सटर्नल जिहड़े पैरामीटर वा उन्हां दे उपर डिपेंड करदा वा, वो सारे कॉन्स्टेंट होने चाहिए आ। इदां नहीं होना चाहिए कि एक बारी तुसी ये प्रैक्टिकल कर रहे जो एम्पीयर मीटर ते वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली, हुण दूसरी बारी मान लो तुसी गर्मियां दे विच कर रहे जो, पहली बारी सियाल च कीती ते दूसरी बारी गर्मियां च कीती। हुण गर्मियां दे विच बाहर दा टैंपरेचर की आ ज़्यादा हुंदा वा, ते इस तार दा भी ज़्यादा होएगा, ते जदों टैंपरेचर वध जां घट हुंदा वा ना, उदों साडे कोलों इस ग्राफ दे विच चेंज आ जांदी आ। कई बारी की हुंदा प्रैक्टिकल करदे दरम्यान जदों तुसी लैब दे विच प्रैक्टिकल करदे ना, एक बच्चे ने प्रैक्टिकल किया तो उहदियां रीडिंग्स मान लो ये आ गईयां, हुण दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल करन जा रहा वा, जो दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल उस अपरेटस से करन जा रहा वा ना, कई बारी तार गर्म हो जाती आ, तो जां ये रजिस्टेंस वाली तार गर्म होगी जां वैसे सर्किट दे विच कोई तार गर्म होगी, तो जे तार गर्म हो जाएगी तो फिर जिहड़ी रजिस्टेंस आ ना उहदे विच फर्क पै जांदा वा, सानू ये वाला रिजल्ट नहीं मिलता। सो वेट करनी बनती आ, जिहड़ियां प्रैक्टिकल सानू मुश्किलां आउणियां वा उन्हां नूं असीं ओवरकम किवें कर सकदे हां। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहा कि साडे जिहड़े एक्सटर्नल पैरामीटर आ कॉन्स्टेंट होने चाहिए आ, तो जे आपां एक्सटर्नल पैरामीटर कॉन्स्टेंट रख के वी ते आई का ग्राफ बनावांगे ना, कि मैं वी इधर बनाया तो आई इधर बनाया, ठीक आ। हुण ਇਹ वालियां जिहड़ियां रीडिंग्स आउणियां वा ये मैं ग्राफ ते फिलअप करदा वां, तो जे मैं ग्राफ ते फिलअप करदा वां तो मेरे कोलों बनन वाला जिहड़ा ग्राफ आ वो की आ इस तरीके नाल लीनियर ग्राफ बनना वा। लीनियर क्यों बनना वा? क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी जिहड़ी आ जदों डायरैक्टली प्रपोर्शनल दे नाल 1-1 पावर दे नाल चलदी आ, दोनों की पावर कितनी आ 1-1, तो फिर ग्राफ किहड़ा बनदा वा, फिर साडे कोलों ग्राफ इस तरीके नाल बनदा वा। असीं ये भी देखिया +2 क्लास दे विच कि जदों साडे कोलों कोई इलैक्ट्रिक फील्ड इस तरीके नाल 1 पावर ते इधर 2 पावर नाल चलिया वा, तो फिर ग्राफ किवें दा बनदा वा, फिर सानू पता वा कि ग्राफ जिहड़ा वा वो अलग तरीके का बनता वा। इत्थे की आ, इत्थे दोनों की पावर 1 वा ते दोनों की पावर पॉजिटिव आ, ते दोनों एक दूजे के उपर डायरैक्टली डिपेंडेंट आ, तो इहदा मतलब ग्राफ की बनेगा इस तरीके का बनेगा। हुण जे आपां इहदे विच्चों कहीए, इहदे विच्चों आर नूं डिफाइन करना होवे ते आपां आर की कह सकते हैं कि इत्थों आर बनदी आ V/I, मतलब वोल्टेज ते करंट नूं तुसी डिवाइड कर दो, जो रेशो आउंदी आ उहनूं ही असीं की कहना वा रजिस्टेंस कहना वा। असीं किसी भी सैंपल दे विचों रजिस्टेंस कढनी आ ते सानूं ये पता होना चाहिए वा कि किन्नी असीं वोल्टेज उहनूं अप्लाई कीती आ, मतलब बैटरी किन्ने वोल्टेज दी काम कर रही आ, ते उस सर्किट दे विच किन्ना करंट फ्लो हो रहा वा, फिर असीं दस सकते हाँ कि रजिस्टेंस किन्नी आई आ, वो किन्ना अपोज करदा पिया वा। हुण इहदे यूनिट की गल करिए, यूनिट की आएगा, वोल्ट का यूनिट की है वोल्टेज का वोल्ट, ते
करंट का की आ एम्पीयर। हुण रजिस्टेंस का वैसे यूनिट बनया वोल्ट पर एम्पीयर, ठीक है, पर आपां इहनूं प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, असीं इहनूं लिखते हैं ओम। असीं इस साइंटिस्ट नूं क्रैडिट देण वास्ते रजिस्टेंस का यूनिट की रखिया वा, यूनिट ऑफ रजिस्टेंस ओम। साडा SI यूनिट की आ ओम आ। असीं इहदे विच CGS यूनिट भी पढ़ते हैं रजिस्टेंस का, CGS यूनिट आ साइमन, ठीक है, ये याद रखना। जिहड़ा SI यूनिट आ वो की आ ओम आ, SI यूनिट, ते CGS यूनिट की आ साइमन। हुण देखो इस ओम नूं आपां बहुती वारी इस ओमेगा दे साइन दे नाल ही लिख लैंदे आ, इस तरीके नाल यह साइन भी पा लैंदे आ आपां रजिस्टेंस नूं डिफाइन करन वास्ते। सो साडा ये ओम्स ला वा, ओम्स ला वोल्टेज ते करंट दे आपसी रिलेशन नूं दसदा वा। ते ओम्स ला सानू ये भी दसदा वा कि जेकर बाहरले एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं चेंज हो रहे तो फिर वोल्टेज ते आई दा जिहड़ा ग्राफ आ वो की बनना वा, लीनियर बनना वा। हुण देखो एक गल होर, इस ग्राफ तो आपां रजिस्टेंस की वैल्यू कितों भी कढ सकते हैं। जिवें मान लो मेरे कोलों इत्थे आ 1 आ, इत्थे 2 वोल्ट आ, इत्थे 3 वोल्ट आ, इत्थे 4 वोल्ट आ। हुण इधर करंट भी तो बनना, मान लो इत्थे 2 वा, इत्थे 4 एम्पीयर आ, इत्थे 6 आ, इत्थे 8 वा। मतलब मैं वैसे समझाउण वास्ते आह वालियां वैल्यूज़ पुटअप कर लियां। मैं तुहानूं इत्थे स्लोप बनाउणा सिखाउणा चाहुंदा वां कि ग्राफ दे विच स्लोप किवें बनदा वा। हुण देखो मैं इधरों इंटरवल मान ली आ 2 तो 3 दी, मैं 2 तो 3 वाली इंटरवल नूं उपर डॉटेड लाइन नाल स्केल दे नाल जोड़ता, ते इधरों मैं इंटरवल मान लैंदा वां 4 तो 6 दी, ठीक आ। तुसी कोई भी इंटरवल मान सकते जो, मैं इस तरीके नाल 4 तो 6 दी इंटरवल मान ली। हुण देखो तुसी की कर सकते जो, इस लाइन नूं पूरा अगे वधाओ ते इनू उपर वधाओ, ते इत्थों की आ वाली लाइन जिहड़ी आ मैं इनू कवां जे ओ कह दा, वैसे ओ ए आ, मैं इनू ओ डैश कह देना, ए ते बी। ओ डैश ए किनू रिप्रजेंट कर रही आ, इधर रिप्रजेंट कर रही आ करंट नू, ते ओ डैश बी किनू रिप्रजेंट कर रही आ वोल्टेज नू। ते मैं की कर सकदा, मैं रजिस्टेंस कढनी होवे ते मैं इस ग्राफ तो कढ सकदा कि रजिस्टेंस की आ V/I, ते ए वाली लाइन V नू रिप्रजेंट करदी आ, ए वाली I नू करदी आ, ते मैं दोनों दी लेंथ मैजर कर सकदा वां, ते इत्थे फिलअप करके मतलब जो भी आएगी O डैश B ते O डैश A मैं की करांगा, इहदा रजिस्टेंस की वैल्यू कढ दांगा। हुण देखो ये जिहड़ी चीज़ आ ना कि मैं इदां मिलाया, आपां इहनूं कहने आ ग्राफ ते स्लोप कढना। इत्थे फिजिक्स दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी आ कि सानूं स्लोप कढना आउंदा होवे। स्लोप जरूरी नहीं आ कि जिवें मैं कढिया उदां ही कढो, बेशक तुसी अपनी इधरों कोई इंटरवल 1 तो 2 लै लो, ठीक आ, उहदे कोरसपोंडिंग इंटरवल इधर लै लो, तो उस हिसाब नाल जे 1 तो 2 लैंदे तो इस हिसाब नाल इत्थों स्लोप कढ दो, ए वाली चीज़ नूं छड्ड दो, इत्थों कढ दो। बेशक जे इत्थे आ चीज़ छोटी हुई आ ते आ भी तो छोटी हुई आ ना, इस करके कोई फर्क नहीं पैना, जिहड़ी रेशो आ वो की आ सेम होनी आ। तुसी कितों भी स्लोप कढ सकते जो रजिस्टेंस, इहदा मतलब सानू जिहड़ा वोल्टेज दा ते करंट दा ग्राफ आ वो की दिंदा वा, उहदा स्लोप की दिंदा वा, उहदा स्लोप सानू रजिस्टेंस दी वैल्यू दिंदा वा। ते असी रजिस्टेंस दा यूनिट भी बना लिया। ते जे असी ये गल करिए कि एक ओम किन्नी क रजिस्टेंस आ, आपां डिफाइन करते हैं एक ओम किन्नी क रजिस्टेंस आ। हुण आर दा फार्मूला V/I आ, मैं इत्थे लिखदा R = V/I, ते जेकर वोल्टेज भी 1 वोल्ट होवे ते करंट भी 1 एम्पीयर होवे ते फिर मैं ये गल कह सकदा कि रजिस्टेंस भी 1 ओम होएगी। फिर तो ये चीज़ बनेगी, जे सारियां क्वांटिटीज़ 1 होणगियां ते फिर रजिस्टेंस भी 1 ओम होएगी। हुण देखो आपां इहदी डेफिनेशन बिल्कुल पंजाबी च बनाईए तो साडे कोलों की बनदी आ कि जेकर तुसी इस सर्किट नूं 1 वोल्ट बैटरी दित्ती ते इहदे च करंट नोट कीता 1 एम्पीयर, ते इहदा मतलब की आ, इत्थों दस रहा मैं 1 वोल्ट बैटरी दित्ती, 1 एम्पीयर करंट इहदे च नोट कीता, ते इहदा मतलब इस सर्किट दे विच कितनी रजिस्टेंस आ 1 ओम।
ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਓਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ 1 ਓਮ ਆ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ 1 ਓਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਕਿ 1 ਓਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ 1 ਓਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਟਮ ਤੇ ਇਹ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ A ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ B ਤੱਕ, ਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ, 10 ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 10 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਘਟੀ ਆ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਰ ਵਾ, ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਂ X ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 50 ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ 50 ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਟਮ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਘਣੇ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ, ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, Y ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ Y ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ Y ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ X ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੀਟ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ
कि जिहड़ी रजिस्टेंस आ ना कंडक्टर दे विच, सिर्फ कंडक्टर की गल करन लगा, कंडक्टर दे विच रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो टैंपरेचर दे नाल वधदी आ। ज़्यादा टैंपरेचर दोगे ना कंडक्टर नूं ते वधेगी। क्यों वधेगी? ज़्यादा टैंपरेचर जेकर मैं इनू दे दांगा तो ये फ्री इलैक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे थर्मल एनर्जी लैके, तो जे फ्री इलैक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो फ्री इलैक्ट्रॉन भीड़ पै गई, मतलब जे भीड़ पै गई आ तो हुण चलण दे विच भी तो मुश्किल आएगी, तो जे चलण च इलैक्ट्रॉनां नूं चलण दे विच मुश्किल आई आ तो इहदा मतलब की आ, करंट स्लो हो गया। गिणती बेशक वधा ली पर हुण करंट तो स्लो हो गया ना। तो जे करंट स्लो हो गया तो मैनू पता वा कि इक्वेशन कह रही आ कि जे करंट घट गया वा तो तुसीं मन्नना पऊगा तुहानूं कि रजिस्टेंस वध गई आ। ये साडी बेसिक जी गल वा कि जिथे करंट घट जाएगा उत्थे रजिस्टेंस वध जाएगी। ये चीज़ नूं याद रखना, जिहड़ा कोई कंडक्टर वा, कंडक्टर दे विच टैंपरेचर वधण दे नाल जिहड़ी आ वो रजिस्टेंस वध जांदी आ। हुण आपां जे गल करिए कि रजिस्टेंस प्रॉपर्टी किहदी आ, किहदी खासियत आ, कि रजिस्टेंस खासियत आ एक कंडक्टर दी जां एक नॉन कंडक्टर दी। नॉन कंडक्टर मैं इंसूलेटर कह दिंदा। इंसूलेटर जिवें असीं पढ़िया कि जिन्हां दे विचों करंट पास नहीं हुंदा। करंट एंड इलैक्ट्रिसिटी की गल कर रहे हैं तो मैं करंट की ही गल कर रहा कि करंट पास नहीं हुंदा। तो रजिस्टेंस किहदी प्रॉपर्टी आ? किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी आ कि किसी इंसूलेटर की प्रॉपर्टी आ? तो याद रखो जिहड़ा रजिस्टेंस है ना वो इंसूलेटर की प्रॉपर्टी आ, कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं आ। कंडक्टर वास्ते तो माड़ी आ ना, आपां कहांगे कि आ कोई कंडक्टर वा ते ये रजिस्टेंस शो करी जांदा। हुण जे कंडक्टर वा आपां उहनूं कंडक्ट करन वास्ते लाया वा कि इलैक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर, तां ही ते कंडक्टर कहंदे आ, ते वो फिर भी रजिस्टेंस दई जावे ते वो तो साडे वास्ते सिरदर्दी आ ना कि ये रजिस्टेंस दई जांदा। सानूं किद्दां पता लगा कि रजिस्टेंस दई जांदा? सानूं इत्थों पता लगदा जांदा कि ये हीट हो रहा। जे कोई कंडक्टर हीट हो रहा तो वह कारण यह भी हो सकता कि वो अंदर रजिस्टेंस ज़्यादा वा। सो इंसूलेटर दी ही प्रॉपर्टी आ रजिस्टेंस, कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं आ। कंडक्टर दे वास्ते रजिस्टेंस का होना एक कलंक वा, माड़ी गल वा। तो रजिस्टेंस जिहड़ी आ इंसूलेटर वास्ते क्यों चंगी आ? क्योंकि इंसूलेटर ते जाणिया ही इस करके जांदा कि मैं तो करंट लंघण नहीं देना, तो जिन्नी ज़्यादा उहदे कोल रजिस्टेंस होएगी उन्नी ज़्यादा उहदे कोल पावर होएगी, भाऊ मैं नहीं लंघण दिंदा। ठीक है ना। सो ये साडा वा कॉज ऑफ रजिस्टेंस, जिहदे विच मैं पढ़िया कि कॉज ऑफ रजिस्टेंस इलैक्ट्रॉन्स एटम्स की आपसी कोलिजन ही आ। ते नाल ये भी दसिया कि टैंपरेचर जिहड़ा वा वो रजिस्टेंस ते किवें फर्क पाउंदा। वैसे आपां ये चीज़ डिटेल च भी पढ़ लैनी आ, पर मैं फिर भी इत्थे तुहानूं दस दित्ता। देखते हैं फैक्टर ऑन विच रजिस्टेंस डिपेंड कि वो किहड़े-किहड़े फैक्टर वा, वो किहड़े-किहड़े प्रभावी कारक वा जां तत्त वा जिन्हां दे उत्ते ये रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो डिपेंड करदी आ। ते साडे कोलों सब तो पहलां की आ कि रजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ दे उपर, कंडक्टर की लंबाई दे उपर। हुण वेखो मैं कहना वा कि यह एक मान लो पुल वा, ब्रिज वा, ते तुसीं इत्थों एक कार लैके गुजरना, कार ते जा रहे जो, ते जे मैं कहां इस ब्रिज के उत्ते बहुत ज़्यादा रश वा, रश मतलब रुकावट आ, मतलब रजिस्टेंस आ, ते ये जिहड़ा ब्रिज वा मान लो 500 मीटर वा। ठीक आ, ते 500 मीटर के ब्रिज के उत्ते तुसीं कार लैके गुजरना वा जिहदे उपर रश वा, ते मान लो तुहानूं गुजरन लग्गिया इहदे विचों पास होण लग्गिया लग गए 20 मिनट। ते जे इहो ही ब्रिज लम्मा हुंदा, आपां कहिए कि इहो ही ब्रिज जिहड़ा वा वो 1 किलोमीटर दा हुंदा, ते उहदे उपर इन्ना ही रश हुंदा जिन्ना पहलां सी। ठीक आ, मतलब 500 मीटर दे विच जे 200 गड्डी लगी आ ते अगले 500 मीटर च भी 200 गड्डी फसी हुई आ, ते सानू अनुमानित आ कि सानू कितना टाइम लग जांदा। जे पहला 20 मिनट लगे आ ते 1 किलोमीटर दे विच 40 मिनट सानू लग जाने सी। हुण आपां इदां कह सकदे ना कि जिन्ना ज़्यादा लंबाई उन्नी ज़्यादा रुकावट, उन्नी ज़्यादा रजिस्टेंस। ते उस तरीके नाल असीं इधर कहने आ कंडक्टर दे विच
जिन्नी ज़्यादा लेंथ वधूगी उन्नी ज़्यादा रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो ज़्यादा आउंदी है। जिन्ना ज़्यादा रस्ता उन्नी ज़्यादा करंट दे वास्ते रुकावट। ठीक है, मैं इनू 1 नंबर कह लेना। तो 2 नंबर ते मैं कहना वा एरिया कि जिहड़ी रजिस्टेंस आ वो इनवर्सली प्रपोर्शनल आ। जदों 1 होवे ना तो थल्ले कुछ लिखिया होवे फिर उन्होंने आपां बोलते हैं इनवर्सली प्रपोर्शनल, उल्टा चलेगा। मतलब ए वधेगा तो आर घटेगा, उल्टा चलेगा आपस दे विच। इत्थे की सी सीधा आर वधू एल भी वधू, एल घटूगा तो आर भी घटूगा, सीधा एक दूजे ते डिपेंड आ। इत्थे उल्टा डिपेंड वा। इनू डायरैक्टली प्रपोर्शनल बोलते आ, इनू इनवर्सली प्रपोर्शनल बोलते आ। हुण आ वाला एरिया की आ, ये एरिया वा ए वाले कंडक्टर का। आ जिहड़ा मैं तार वा ना मैं इनू थोड़ा जिहा वड्डा करके बना लिया। वैसे तो मैनू पता वा तार बहुत पतली हुंदी आ, असीं उहदा जिहड़ा जे उहदा डायामीटर भी कड्ढण दी कोशिश करिए ना तो असीं स्क्रू गॉस दे नाल जां वर्नियर कैलीपर दे नाल कड्ढण दी कोशिश करते हैं। पर मैं मान लो उस तार नूं वड्डा करता तो मैं क्या इहदा एरिया आ वाले एरिए की गल करदा, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, ये जिन्ना इहदा एरिया वा। हुण देखो इस गल नूं समझिया जावे एरिया वधण दे नाल रजिस्टेंस किद्दां वध गई, एरिया वधण दे नाल रजिस्टेंस घट किद्दां गई, सॉरी घट किद्दां गई। एक गल सानू जाननी पऊगी कि इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ कंडक्टर दे विच फ्लो करदे किद्दां। हुण देखो मान लो एक कंडक्टर वा, 3D च समझना पएगा। एक कंडक्टर आ ते इहदे विचों इलैक्ट्रॉन्स ने फ्लो होना वा। इहदे विचों इलैक्ट्रॉन्स ने मान लो इधरों इलैक्ट्रॉन आ रहे आ ते फ्लो होना। इलैक्ट्रॉन तो बहुत आ रहे पिछों, नैगेटिव चार्ज वाले बहुत इलैक्ट्रॉन आ रहे आ ते इहदे विच वड़ गए। जदों इहदे विच एंटर होणगे ते की वो इस तरीके नाल लाइन बना के तुरे जाणगे? नहीं, लाइन किद्दां बना लैणगे? क्योंकि ये इलैक्ट्रॉन सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ नैगेटिव चार्ज आ ते नैगेटिव तो एक दूजे नूं रिपैल करनगे ते जे नैगेटिव एक दूजे नूं रिपैल करनगे ते ये कित्थे जाणगे? ये चले जाणगे उस कंडक्टर दे जिहड़ा आपां तार लई होई ना उहदियां बाउंड्रियां ते। इस तरीके नाल सामने वाले पासे भी बनेगी, जिवें ए एक तार आ ते तार दे जिहड़ा आ सरफेस आ इनर सरफेस बाहर नहीं उहदे ते इलैक्ट्रॉन बैठे रहने, क्योंकि रिपल्शन के जरिए जिहड़े आ इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ इस पाइप दे विच बिल्कुल इदां अंदर नाल लग जाने आ। पाइप दे विच जे आपां सामने वाले पासों देखिए तो पाइप इदां दा नज़र आया, इलैक्ट्रॉन सानू इत्थे आउंदे पए नज़र आउणे आ इत्थे, क्योंकि रिपल्शन के जरिए इन्हां वध तों वध दूरी बनाउण दी कोशिश करनी आ ते वध तों वध दूरी बन किन्नी सकदी आ? इस कंडक्टर के अंदर ही रहना पैना ना। तो कंडक्टर के सिरियां ते चल जाओ, कंडक्टर की बाउंड्री ते चल जाओ। मान लो ये एक पाइप आ जिहदी अंदर नूं जा रही आ, इस तरीके नाल अंदर नूं जा रही, तो इलैक्ट्रॉन की आ सरफेस दे नाल नाल आ रहे आ। ते जे एरिया ही वड्डा हो गया, इहदा मतलब एरिया आ एक एरिया क्रॉस सैक्शन सी, एरिया वड्डा हो गया। एरिया तार दा वड्डा होण दे नाल की होया? रस्ता खुला हो गया। रस्ता खुला होण दे नाल इलैक्ट्रॉन्स ने तो सरफेस ते चलना ना, इस तरीके नाल सरफेस ते चलना। जिवें कोई मान लो पाइप आ जां कोई जिवें कोई है पेंसिल आ, एक कंडक्टर वा, तो करंट कित्थे फ्लो करदा वा? करंट इस तरीके नाल सरफेस दे नाल नाल फ्लो करदा वा, अंदर लाइन बना के नहीं जांदा, सरफेस दे नाल नाल। हुण जे सरफेस ही वड्डा हो गया इस तरीके नाल, मान लो इहदा सरफेस आ वाला सरफेस जिहड़ा सामने वाला ये वड्डा हो गया, वड्डा हो गया तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, रुकावट घट होएगी। तो इस करके असीं कहने आ कि जे एरिया वड्डा हो जाएगा, एरिया क्रॉस सैक्शन तार दा वड्डा हो जाएगा तो रजिस्टेंस जिहड़ी आ ऑटोमैटिकली घट जानी आ। इत्थों एक गल जरूर सीख के जाना कि जिहड़ा करंट आ ना वो सरफेस के नाल नाल फ्लो करदा वा। सरफेस के नाल नाल फ्लो क्यों करदा वा? क्योंकि वो लाइन बना के नैगेटिव नहीं फ्लो कर सकते, क्योंकि इन्हां दे उत्ते रिपल्शन लगनी आ। ये नैगेटिव अगले ते रिपल्शन लाएगा, तो रिपल्शन लाएगा तो जाणगे कित्थे? जाणगे तो फिर सरफेस के उपर ही ना, कि वो जिहड़ा सरफेस आ उहदे उपर जाणगे। इस तरीके नाल ये पेंसिल आ इहदे सरफेस के उपर जाणगे। सरफेस के उपर इदां नहीं उभरे होणगे, इदां उभरनगे नहीं,
इनर सरफेस ते रहणगे, मतलब जिहड़ी उहदी इनर कोर बननी है ना, उस इनर कोर दे नाल लगे लगे रहणगे ते अगे नूं वधणगे। ते जे वो जिहड़ी इनर कोर जिहड़ी आ जिहदे नाल लग लग के जाण डे आ, जे ओही वाइड हो जाए तो फिर लंघना होर सौखा हो जाएगा, तो साडे कोलों ए रिलेशन बन जाएगा रजिस्टेंस का। तो दोनों नूं असीं इकट्ठा करिए तो साडे कोलों रिलेशन बनता वा L/A का। हुण इस प्रपोर्शनल नूं हटाना बहुत जरूरी आ, ते प्रपोर्शनल नूं हटाया किवें गया वा, R इत्थे साइन लगाया गया रो दा, रो इनू रो बोलना L/A। इस रो नूं असीं की बोलदे हां, इस रो नूं असीं बोलदे हां स्पैसिफिक रजिस्टेंस, ते जां असीं बोलदे हां रजिस्टिविटी। सो एक ही हो गया, ये रो दा साइन आ, जां ते इनू बोलो स्पैसिफिक रजिस्टेंस, मैं इत्थे लिख दिना स्पैसिफिक रजिस्टेंस, ते और रजिस्टिविटी वो तो पहला ही सुनिया रजिस्टिविटी, असीं इहनूं स्पैसिफिक रजिस्टेंस ते रजिस्टिविटी दे नाम नाल संबोधित करते हैं। पर समस्या ये आ कि तुसीं प्रपोर्शनल नूं हटा के रो ला तो दिता ते उहदा नाम ही रखता, ना रखण तक काम नहीं चलेगा। सानूं दसना पएगा कि ये रो ये है की चीज़ आ, कल नूं इस नूं कंडक्टर दे विचों नोट किवें करना वा, जां कोई भी मैटल आ जां कोई भी चीज़ आ उहदे विचों इनू नोट किवें करना वा, क्योंकि इक्वेशन दे विच आया वा ये, ते इक्वेशन दे विच आया तो फिर वैल्यू तो कोई ना कोई होनी चाहिदी है ना इहदी, अदरवाइज तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होनी। तो जे वैल्यू होनी चाहिदी आ तो फिर पता होनी चाहिदी है ना कि वो वैल्यू बननी किद्दां, काउंट किद्दां करनी आ, किवें कैलकुलेट कर सकते हैं असीं, किस तरीके नाल कर सकते हैं। तो इत्थों ही असीं एक अंदाजा बनाया, देखो जे आपां कहिए कि एक साडे कोलों सैंपल आ, मान लो मैं इन्हां नूं मिटा दिंदा पहलां, मान लो साडे कोलों सैंपल आ इस तरीके नाल, ते जेकर मैं कहां कि इहदी लेंथ 1 मीटर आ, 1 यूनिट लिख लो, 1 मीटर 1 यूनिट इक्को चीज़ आ, इहदा एरिया कितना वा, इहदा एरिया भी 1 आ, मतलब यह वाला एरिया भी 1 ते ये वाली लेंथ भी 1, ठीक आ। तो यह फार्मूला लगावां तो फिर की बनता, देखो यह वाला फार्मूला मैनू कहता वा कि R इज इक्वल टू रो 1 मीटर ते 1 मीटर स्केयर, यह बनया मेरे को फार्मूला। यूनिट मैं इत्थे मीटर भी लिख सकदा, सेंटीमीटर भी लिख सकदा। जो मैं यूनिट लिखता ना, उसका मतलब जिहड़ा भी यूनिट लेना, SI लेना तो SI ले लो, जे मैं SI लेना तो फिर मीटर मीटर लिखता, लेंथ का मीटर ते एरिए का मीटर स्केयर। हुण देखो जेकर लेंथ 1 हो जाए, एरिया 1 हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि एक इक्वेशन की बनती आ, R इज इक्वल टू रो 1 ना 1 कटिया गया, रो पर मीटर, थले 1 मीटर बचिया जाएगा। हुण देखो मैं कहना वा इत्थों एक डेफिनेशन बनाना वा कि R ही रो है, पर कदों, इफ L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, जेकर किसी कंडक्टर की तुसी रजिस्टिविटी कढ़नी आ, ए वाली रजिस्टिविटी कढ़नी आ, तो रजिस्टिविटी किद्दां कढ़ सकते जो, कहंदा R रो दे बराबर है, R रो दे बराबर है, पर कदों, जदों L भी 1 होवे ते 1 भी A भी 1 होवे। मेरे कहने का मतलब आ, इधर देखो जेकर सारियां क्वांटिटीज 1 हो जाए, 1 ओम नहीं, देखो जेकर R इज इक्वल टू रो, इफ L इज 1 A इज 1,
जे ये दोनों क्वांटिटीज़ 1 1 आ तो आर रो के बराबर आ तो साढ़े कोलों स्पैसिफिक रजिस्टेंस की डेफिनेशन की बनी कि जेकर तुसी किसी कंडक्टर की रजिस्टिविटी कढ़ना चाहते जो स्पैसिफिक रजिस्टेंस कढ़ना चाहते जो तो की करो उस कंडक्टर की लेंथ 1 लै लो तो वह एरिया भी 1 लै लो वो जिन्नी रजिस्टेंस आ ना उन्होंने तुसी की कहना वा रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी रजिस्टेंस ही है पर कदों जो L1 हो जाए तो A1 हो जाए सो रजिस्टिविटी की हुई रजिस्टिविटी इज द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 यूनिट एंड एरिया क्रॉस सैक्शन इज आल्सो 1 यूनिट ठीक है वो चीज़ रजिस्टिविटी आ हुण देखो साडे वास्ते ज़्यादा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट आ कि रजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट आ असी कहने रजिस्टिविटी जो असी कहने ना कि सानू किसी सैंपल की रजिस्टिविटी दस दो तो सानू ऑटोमैटिकली पता लग जाता वा कि ये रजिस्टिविटी किहदे विच वा 1 यूनिट लेंथ ते 1 यूनिट एरिए दे विच ते असी देख लांगे सानू कितनी वायर चाहिए है उहदे हिसाब नाल कैलकुलेट कर लांगे रजिस्टेंस कितनी आउणी आ ते जे असी कहिए ना कि सानू रजिस्टेंस पता वा तो सानू रजिस्टेंस तो नहीं पता लगेगा क्योंकि सानू की पता कि असी कितनी वायर वरतनी आ टोटल रजिस्टेंस कितनी आनी आ उस तो कैलकुलेशन करनी औखी हो जाएगी मेरे कहने का मतलब आ कि रजिस्टिविटी का पता होना पहला जरूरी आ क्योंकि रजिस्टिविटी का पता होएगा तो असी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलकुलेट कर लाँगे कि सानू ये वायर सुटेबल भी आ कि नहीं वा सुटेबल ठीक है सो रजिस्टिविटी आ साडी ये टॉपिक जिहड़ा वा तो असी ये रजिस्टिविटी नूं समझिया कि रजिस्टिविटी की आ असी रजिस्टिविटी का यूनिट भी बना लैंदे आ वैसे इत्थे मैं लगभग बना ही दिता सी यूनिट इत्थे ओम रजिस्टिविटी का स्पैसिफिक रजिस्टेंस का रो साइन आया आर दा की आ ओम मीटर आ मीटर इधर मल्टीप्लाई होया तो रजिस्टिविटी का यूनिट की बनया ओम इंटू मीटर ठीक है मतलब ओम इंटू मीटर बनया रजिस्टिविटी का यूनिट ये साडा रजिस्टिविटी आ हुण एक गल नोट करो जदों भी असी रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाई आ ना तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन असी ये कह के बनाई आ कि लेंथ भी 1 होवे ते एरिया भी 1 होवे हुण जिन्नी रजिस्टेंस आ उन्होंने रजिस्टिविटी कहो मतलब असीं दो चीज़ां बाउंड कर लियां कि लेंथ भी 1 ते एरिया भी 1 जो लेंथ 1 एरिया 1 होएगा उस समय जिन्नी रजिस्टेंस होएगी उन्होंने रजिस्टिविटी कहा जाऊगा तो जे मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पा दा कि एक वायर आ मान लो एक वायर आ ये वायर जिहड़ी आ ये 5 मीटर वा तो ये रजिस्टेंस मान लो 10 ओम आ तो रजिस्टिविटी मान लो कोई अपने को वैल्यू मान लो कि 2 ओम मीटर आ ठीक है तो बाद में मैं तुहानूं सवाल करा कि ये जिहड़ी लेंथ वा ये वायर नूं अद्धी कर दिता हुण नवीं रजिस्टिविटी कितनी आ जां मैं कहां ये वायर नूं डबल कर दिता ट्रिपल करता हाफ करता 1/3 करता तो नवीं रजिस्टिविटी की आ तो याद रखो रजिस्टिविटी कदे नहीं बदलनी रजिस्टिविटी की आ रजिस्टिविटी उन्नी रहनी आ भावें तार नूं लम्मा कर दो भावें तार नूं कट दो रजिस्टिविटी नहीं बदलनी रजिस्टेंस जरूर बदल सकती है जे 5 मीटर की तार 10 ओम रजिस्टेंस दिंदी आ तो सानू पता 10 मीटर की तार ने 20 देनी आ पर रजिस्टिविटी क्यों नहीं बदलनी क्योंकि रजिस्टिविटी की डेफिनेशन ही इस हिसाब नाल बनाई आ कि L भी 1 तो A भी 1 तार तुसीं जिन्नी मर्जी 50 मीटर 200 मीटर ले जाओ पर रजिस्टिविटी कहती मैं तो अपनी डेफिनेशन ही L1 A1 ते बनाई आ भावें अद्धी कर दो भावें इस तो भी दुगनी कर दो सो तार नूं वधाउण घटाउण दे नाल रजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी रजिस्टेंस चेंज हो सकती है सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द रजिस्टेंस डिपेंड इहदे विच साडे कोलों लिखती फैक्टर 2 आए आ L ते A ते रो असीं उहदे तो बना ली पर मैं फिर भी पहला भी कहा वा कि रजिस्टेंस एक फैक्टर ते होर डिपेंड करदी आ टैंपरेचर ते इन्वायरमेंटल फैक्टर आ टैंपरेचर कंडक्टर दे विच टैंपरेचर वधण दे नाल रजिस्टेंस वध जांदी आ ये भी गल नूं याद रखना कि कंडक्टर दे विच टैंपरेचर वधण दे नाल रजिस्टेंस वध जांदी आ